अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज देखते हैं कुछ पास पेपर क्वेश्चंस चैप्टर 11 के। क्वेश्चन 9 है हमारे पास। योर फर्म हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ चौधरी लिमिटेड for year ending 31st December 2011. The previous auditor from whom your firm has received a professional clearance didn't wish to be reappointed as auditors. CL is involved in supply of imported consumer products. Company has its own retail outlets in all major cities. It also supplies goods to large retailers, most of whom are allowed 45 days credit. ठीक है. Time required to import the goods is approximately 2 months. 50% of amount is paid at time of booking of order and remaining amount is paid at time of receipt of goods. The goods are required to be insured by CL. CL's supplier are इंश्योर की हुई हैं। ये कह रहा है कि इंश्योरेंस है उनके गुड्स की। अच्छा, उसके बाद है CL's supplier are mainly based in Middle East due to political disturbance. A major supplier has recently ceased its operations. मेजर सप्लायर यहाँ पे है, लार्जेस्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है all imported goods are initially placed in a warehouse in Karachi. Supplies are made against orders which are mostly received by or telephoned by sales department. The warehouse in charge prepares a summary of all dispatch which is approved by sale manager on daily basis. Stock records are computerized. Physical stock taking is carried out on regular basis at the warehouse as well as retail outlets. Therefore, a 100% physical count is not undertaken at the year end. Day-to-day expenses of the retail outlets are paid out of cash receipts from customers. Balance cash is deposited into बैंक on daily basis. जो कैश है वो बैंक में डेली बेसिस पे डिपॉजिट किया जाता है. The management accounts shows that the company has not been able to achieve the sales target for current year, although the sales have increased by 12% as compared with the same period in 2010. Stocks and trade debtors have significantly increased and management attributes this to main account on account of increase in sales. ठीक है. CL is planning to expand its business and it tends to fund the expansion through a bank loan. CL's existing bankers have decided to increase the borrowing limits and therefore company has approached another banker for the loan. The management has requested you to complete the audit by 15 Feb to enable it to submit the audited financial statements to the new bankers. अब क्या रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क इन बोथ सिचुएशन. उसने आपके पास ये सारी सिचुएशन दे दी है चौधरी लिमिटेड की. सारी उन्होंने जो जो डिटेल्स थी, जो जो जैसे जैसे उनका बिजनेस चलता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है. अब उसने क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और इवेल्युएट करना है. ठीक है. अच्छा जी, ये हमारे पास इसका आंसर है जिसमें हमारे पास एक तरफ रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं और एक तरफ रिस्क एंड एवेल्यूएशन दी हुई है. ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से जो रिस्क राइज हो सकता है. फर्स्ट हमारे पास दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट ऑफ क्लाइंट फर्स्ट ईयर है, तो उसमें क्या रिस्क होगा? ओपनिंग बैलेंसेस का. ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, देयर मे बी स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस एंड बैलेंसेस मे नॉट बी करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड. नेक्स्ट, अ क्लाइंट डील्स इन सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड रिसीवेबल या पेबल में इशू हो सकता है. Goods in transit may not be appropriate recorded, appropriate exchange rate, change in rate of FCY. इसी तरह ये सारे इश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशंस एंड 100% स्टॉक काउंट इज नॉट डन एट ईयर एंड बाय मैनेजमेंट. इसमें क्या रिस्क है? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, डिफिकल्ट टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री. कैश फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज पेड इन एडवांस. रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट या अंडरस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस. मेजर सप्लायर हैज सीज्ड इट्स ऑपरेशंस विद द क्लाइंट. रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, क्योंकि मेजर क्लाइंट है यहाँ पे. सिग्निफिकेंट रेज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है. यहाँ पे इन्वेंट्री जो मे हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड NRV ऑफ इन्वेंट्री मे बी लोअर देन इट्स कॉस्ट. Significant increase in debtors valuation. Debtor audit is to be completed within a short time. Scope limitation, time limitation है यहाँ पे. अच्छा, उस तरह excessive dealings in cash. Risk of misappropriation. कैश में जो है misappropriation का रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. इसी तरह हमारे पास है इसका सेल्स ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड ओवर टेलीफोन. सेल्स जो यहाँ पर रिस्क है कि ये रिकॉर्ड सही तरह नहीं हुए होंगे. प्रीवियस ऑडिटर डिडंट विश टू बी रीअपॉइंटेड. देयर इज रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट डिसएग्रीमेंट और स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सारे आपने प्रीवियसली पढ़े हुए हैं, तो होप सो कि आपको ये समझ आ गए होंगे. अच्छा जी, क्वेश्चन 10 हमारे पास. इन प्लानिंग फेज ऑफ ऑडिट ऑफ डायनामिक लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 30 June 12 यू हैव कैलकुलेटेड फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर 8 months. अच्छा, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिए, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज दिए, करंट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न, डेटर्स टर्नओवर डेज. आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव ऑडिट रिस्क विद व्हिच ऑडिटर शुड कंसीडर बाय प्लानिंग द ऑडिट. ठीक है, अब यहाँ पे उसने 8 months की पीरियड एंड 29 Feb 2012 के दिए हुई सारी परसेंटेजेस और ये डेटेड 30 June 11 की दी हुई हैं और 10 की दी हुई हैं. ठीक है, अच्छा, अब उसने ये कहा कि आपने प्रोस्पेक्टिव ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं इसमें से.
इसका आंसर है हमारे पास डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. Decrease in gross profit ratio indicates sales may not have been completely recorded, purchases may have been overstated, closing stock may be incorrectly valued. Decrease in gross profit also indicates obsolescence of inventory, impairment of excess. ठीक है. Increase in inventory turnover days, valuation of inventory में ये है कि वही वाली इन्वेंट्री में भी ऑब्सोलीट और जो एनआरवी होगी एनआरवाई पे राइट किया गया होगा इन्वेंट्री को. इंक्रीज इन डेटर्स टर्नओवर डेज, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स जो है existence of slow moving and doubtful debts which may require provision. It also in scaleless company has poor credit controls. ठीक है. Adverse economic conditions for example risk of going concern वगैरह ये सारा कुछ इसमें आएगा. ठीक है. अच्छा जी क्वेश्चन 11 हमारे पास यहाँ पे उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है. द कंपनी सेल्स गार्डन शेड्स एंड फर्नीचर फ्रॉम 15 रिटेल आउटलेट. सेल्स आर मेड टू इंडिविजुअल्स विद इनकम बीइंग in form of cash and debit cards. All items purchased are delivered to the customer using Zech's own delivery vans. Most sheds are too big for individuals to transport in their own motor vehicles. The directors of Zech indicate that company has had a difficult year but are pleased to present some acceptable results to the members. अच्छा अब वो यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है 2008 की और 2007 की. ठीक है. अच्छा कंपेरेटिव ईयर्स की दी हुई है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारे पास. As part of your risk assessment procedure for the company, identify and provide a possible explanation for unusual changes in the income statement. ठीक है. ये हमारे पास इसका आंसर है. यहाँ पे रिस्क फैक्टर है और उसके बाद इसकी रिस्क और वैल्यूएशन है. रेवेन्यू है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, रेवेन्यू का यहाँ पे रिस्क है. कॉस्ट ऑफ सेल्स है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिस्क है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, एडमिन एक्सपेंसेस. इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. इंटरेस्ट एक्सपेंस डिस्पाइट सरप्लस कैश इंटरेस्ट एक्सपेंस. रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम का रिस्क यहाँ पे. इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को स्टॉप करके आपने यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है. पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसमें इनकम स्टेटमेंट को देखना है और फिर इसके कंपैरिजन में आपने ये उसका आंसर देखना है. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट का भी मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देती हूँ. उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर वीडियो स्टॉप करके अगर आप देखना चाह रहे हैं तो भी आप ऐसे देख सकते हैं. ये आपके यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, साथ साथ वहाँ पे इसको आंसर देखेंगे और जो है ना इसको वैल्यूएट करेंगे. ठीक है. मैंने आपको गाइड कर दिया. उम्मीद है जी आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.